problems with me. Men love me in India. It's the women who are some women, not most of them, who are so vicious to me. सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा. Oh, same. मैं अपने सब एक्शन खुद करूंगी. जैकी को इम्प्रेस करना था, जैकी चैन था. मुझे कोई स्टंट डबल नहीं चाहिए. And the director said, Jackie Chan said, "Are you sure?" I said, "I'm sure." So fit क्या है? The worst decision of my life. जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करूंगी मैं. What a fun concept though. No, good stuff ना. I mean, देखो भाई, कई बार हमें आपकी जर्नीज के बारे में नहीं पता चलता है, सीधा पिक्चर की बातें होती हैं और फिर चले जाते हो आप लोग. बट you've had such an incredible one, तो मतलब बात करना जरूरी है. And still running. हाँ जी, वही तो देखिए. Still running after 20 years fuck. So when are we starting? This is all part of the conversation. हम कुछ कट नहीं करते, हम सब रख देते हैं. हमको कुछ मतलब ये सब एक मजा इधर ही है ना. But hi Malika, good morning, welcome to the Bombay Journey. क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बहुत excited हूँ. Yes. To do this interview, the Bombay weather, monsoons, and my film is releasing. So सारी चीजें इकट्ठे हो गई. तो आप वर्सोवा से ही मतलब नाता रखते हो कि सबसे ज्यादा, कि there was a different area जहाँ आप आए? मैं पहले यहीं आई बिकॉज मुझे वर्सोवा हाँ मुझे बहुत हरा भरा लगा है ना. हाँ, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्मॉल गोवन विलेज. It could be one. कमर्शियल नहीं था बिल्कुल भी. एंड देखिए ना, यहाँ पे हर जगह सब हरियाली हरियाली है. और ये मेरी बिल्डिंग के आगे तो कोई बिल्डिंग आ ही नहीं सकती, वही हरियाली है ना. हाँ, तो मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी बॉम्बे में. अरे वाह. लेकिन आई नेवर वांटेड टू लीव दिस बिल्डिंग एंड दिस अपार्टमेंट बिकॉज द व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेस से ज्यादा द माइंडसेट दैट यू वेक अप एंड यू सी ऑल द ग्रीन अराउंड. अरे वाह. तो बॉम्बे में कहाँ अपने को ग्रीन हरियाली देखने को मिलती है. हाँ मतलब बोरीवली नेशनल पार्क. वहाँ रह नहीं सकते ना. हाँ लेकिन so that's why I've never left Warsaw. I've always loved it. True. But मस्त है. तो I was today years old when I learned कि आपका नाम रीमा है, मेरी वाइफ का नाम रीमा है. अच्छा, how sweet. ये ट्रांसफॉर्मेशन नेम चेंज स्टोरी क्या थी? You know, because at the time when I entered the industry, so first of all, Sharawat is my mother's name. Yeah. So coming to Reema first, I changed the name because there were so many Reemas in the industry. True. And my director at that time, they said कि Reema screen पे अच्छा नहीं लगेगा नाम, हम नाम change करते हैं, कोई glamorous नाम रखते हैं. Reema is not glamorous enough. So I said, okay, रख लो तुमको जो रखना है. So they came up with the name Malika, and I said I like the sound of it. So that's how Malika happened. Arey wah. And Sharawat happened because my family kind of disowned me when I said I'm going to make the movies and I want to go to Bombay, and so they were very traditional people. So I said, okay, I'll disown your name only. What you'll disown me? So I took my mom's name. ये तो interesting है क्योंकि मतलब this takes true gritty balls to be like अरे हटाओ. Yeah, but you know when you're 19, 20 at the time, you're so naive. You think you can conquer the world. You think you can achieve anything. एक rebel attitude भी होता है ना. Yeah, and I was so rebellious. So I was like, ठीक है, देखी जाएगी जो होगा. I left it in God's hands. वाह वाह वाह. हाँ, और आप हरियाणा के हो मतलब, तो मैं पानीपत का हूँ, तो हिसार ज़्यादा. Oh my God! पानीपत में सबसे ज़्यादा मक्खियाँ हैं. I call it the मक्खी state of India. Really? Yes, not the state, the city, the मक्खी city. सबसे ज़्यादा मक्खियाँ मुझे पानीपत में दिखती हैं. भाई ऐसा है तो बताओ भाई. Because I have family there. हाँ. I have two of my मासीज whom I love and I'm very close to them. अरे वाह. They live there, so बचपन में मैं बहुत गई हूँ पानीपत. हाँ. So I have the memories of मक्खीज. क्या बात है. तो ये तो देखो इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, क्योंकि आप फिर हरियाणा से मुंबई तक का सफर कैसे तय कर रही हो एज अ टीनेजर? Yeah, I mean, you know, I just was determined. कि मुझे तो अभी एक्ट्रेस बनना ही है. तो आप कॉलेज की? हाँ, I finished my college and मिरांडा हाउस गई हो, तो मतलब थोड़ी गीक भी हो क्या? जी, I mean मिरांडा में एडमिशन मिला. I wanted to do actually philosophy. Philosophy. I graduated in philosophy honors. I was always from my childhood very interested in philosophy. I studied, you know, when you study Indian philosophers like Vivekananda and Yogananda, and also the Hindu philosophy. It really had a strong, very strong, huge effect on my thinking.
That's why I wanted to delve more into philosophy. And then when I did philosophy, I read about those Greek philosophers, Plato and Socrates. I read about German philosophers. So it was very interesting for me. Yeah. इट्स सो वियर्ड ये जब आप जिस टाइम पे बॉलीवुड एंट्री कर रही हो, हाँ. उस टाइम पे इतना ज्यादा डेप्थ क्यों नहीं थी हमारी फीमेल आर्टिस्ट को? क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है ये तो। मतलब आप फुल साइकोलॉजी के अंदर आपने पूरा खेल दिया अभी मेरे साथ। मतलब आई एम थिंकिंग यार वो बीए वाली पब्लिक के साथ और दोस्ती करना चाहिए था, उन लोग को सब पता था ये सब। No, you know, in the sense, said at that time बहुत ही अलग वक्त था वो, 2004 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। और उस वक्त there were a lot of judgments upon me, क्योंकि अब कुछ bold scenes दिए, तो उसके लिए फिर वो typecast हो गए ना, तो उन्होंने सोचा अच्छा ये तो bold scene देती है। ऐसी judgment आ गया that actresses who are glamorous are dumb. हाँ. Like, you know, blondes are dumb. That's the stereotype a lot of actors suffer from. So that's what happened, and a certain part of the media has always been very critical. They never looked at the bright side, the more intellectual side of me. Yeah, and they never even looked at the activism side of me, which is like for women's rights. I do a lot to raise awareness for women's rights and everything. I locked myself up in a cage at the Cannes Film Festival. 12 hours. For 12 hours. Absolutely, because I was like, this is, you know, that's how women are suffering, this child prostitution, and that's how women are trafficked, and this is what their cage, their room kind of looks like. Yeah. To bring awareness with the imagery, you know. Which is super. It's hard, yeah. But the press has, a certain section of the press, not all of it, has always avoided that and focused only on the glamour, on my slim waist and the figure and the songs, the glamorous songs. I guess the glamour was overwhelming for them. And I was so unapologetic also, no? I wore a bikini in Murder. Yeah. No, actresses, of course, before me also have worn a bikini, but I was so nonchalant about it, so unapologetic. हाँ. I was like, I have a great body, you know, what do you want me to do? Wear a sari on the beach? No, I'll wear a bikini. And I celebrated my body because for me that was very liberating. And I didn't really care, and that was too much for people to handle, especially women. Huh? Especially women. You know, men have had no problems with me. Men love me in India. And I love them back. It's the women who were some women, not most of them, who were so vicious to me. I don't know why were they so vicious to me, because I love sisterhood. I love to support women wherever I go, Sid. I always tell girls that, you know, you have to be economically independent. Yeah. It's not your father's money, it's not your husband's money, it's your own money. True. That is real empowerment and real emancipation for a woman. Otherwise, it doesn't exist. You'll always be dependent on other people. Yeah. And they'll treat you the way they want to treat you, whether they want to kick you around or put you on a pedestal, that's your luck then. So I always tell women, I believe in uplifting women and in the sisterhood. That's so cool, yeah. So kudos to that. I mean, really, like financial literacy is so important. So important. So I learned very, you know, I've been very, I don't know how to say, I've been very disappointed by the men in my personal life, namely my father. And there was just nobody for me. So I was on my own from a very young age, from a very early age. And this is the first lesson that I learned, that I have to be economically independent. Otherwise, my destiny will be controlled by other people in my life. That's true. हम लोग ना, मतलब मेरे parents and my in-laws, हाँ. they both, like, something that they agree upon massively is Murder is one of their favorite films. Oh like, my God, it warms my heart. Please Vicky thank उठते रहे तो them. मतलब हमारे घर में बचा था, हम देखने नहीं जा सकते थे पिक्चर। पर क्यों, ऐसा क्या था उसमें? हम 90s किड है ना, तो तभी एडल्ट फिल्म था ना, तो हम लोग 90s के कैसे? The film came in 2004. हाँ, so मतलब then I was 12. You're just making out. What was the big deal? Yeah, I mean, we would have learned so much. We would have had some amount of like base knowledge of how to go about things. It's just passion, and Yeah. we're all Indians. They're a very passionate race. Yeah. So you know, and the song was picturized so aesthetically, so beautifully. How did that happen? So आपने तब तक ऐसा नहीं है कि फिल्में नहीं की थी, आपने 2 रोल कर लिए थे तब तक? I think एक ही हाँ, किया था। दो किए थे। दो किए थे। हाँ, तो one तो is still credited to you, I think, on IMDb as Reema Lamba only. Okay. And the second one मैंने तो IMDb कभी खोल के भी नहीं देखा, मुझे नहीं, पता भी नहीं क्या लिखा है IMDb पे। तो when murder happens, ऐसा हुआ कि like तो मर्डर कैसे हुई है बता दो, and then was it such कि भाई
पिक्चर होते सैलाब आ गया कॉल्स का और आपको मतलब ऑफर धड़ाधड़ मिल रहे थे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? मर्डर के लिए मैंने ऑडिशन किया। हाँ, ऑडिशन से ही मुझे फिल्म मिली। भट्ट साहब को मेरा ऑडिशन पसंद आया, महेश भट्ट साहब को, हाँ और जी। तब उन्होंने मुझे मर्डर ऑफर की। तो ऐसे और ऐसा कुछ नहीं हुआ, मर्डर सुपर हिट हो गई, लेकिन आई थिंक it was ahead of its time. Really? Yeah. I think my attitude was ahead of its time, which made the conservative and the traditional heroes and directors a little uncomfortable in Bollywood. So ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास इतने फोन आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या बात It was कर रहे हो? मेरे को always लगा a तो struggle. 100% आया रहेगा। I mean, they were all for ये bold scene है, वो bold scene है, and I didn't want to do that. See, murder मैंने इसलिए की because एक कहानी बहुत अच्छी थी और इतनी सुपर हिट सिर्फ कहानी के दम पे ही हुई। हाँ जी, Otherwise, lots of actresses have done bold scenes and all. Beyond their first feverish film, they haven't gone anywhere. So कहानी लोगों को पसंद आई. It resonated with the Indian population. Female audiences also. With the female audience, I have a lot of women who tell me that we loved your portrayal of this sympathetic adulteress, they call it, in Murder. तो मुंबई आप फर्स्ट डू यू रिमेम्बर कि कहाँ उतरी थी? स्टेशन, एयरपोर्ट, कहाँ आई थी? मैं एयरपोर्ट पे आई थी। मेरे पास कोई बैड स्ट्रगल स्टोरीज नहीं है। नहीं, मैं ऐसा जान के नहीं निकालना चाह रहा स्ट्रगल। ऐसा सेंटा क्रूज एयरपोर्ट से किधर गई ये भी बता सकते हो आप। I've always had money. हाँ, ठीक है। Not a lot of money during my struggling days, पर शुरू से ही मुझे सेविंग्स की आदत थी। इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज है, राखी हो तो भाई पैसे देता है, बर्थडे पे नानी और दादी पैसे देती हैं। So I had a lot of savings like that. So I came to Bombay. I flew to Bombay. मुझे मेरे फादर ने तो ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास you have 1 rupee in your pocket or not. मैंने तो किसी को बाय भी नहीं बोला। बैग पैक किया और आ गई इधर। And then I rented an apartment. पहला एक जूहू में ही अपार्टमेंट लिया मैंने। क्या बात है? छोटा सा डब्बा था एक। वाह। 1 bedroom. लेकिन जूहू में था? जूहू में था। मुझे पता ही नहीं था जूहू है क्या है ये। अच्छा, इकोनॉमिक्स नहीं मालूम था? मुझे पता नहीं थे बॉम्बे के इकोनॉमिक्स। जो मेरे प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे दिखाया, मैंने कहा हाँ ये अच्छा है, मैं ले लूंगी। आई वॉज सो एक्साइटेड कि मेरा अपना अपार्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई कॉल्ड समथिंग माई ओन। कि मेरा अपना अपार्टमेंट है, इसका रेंट मैं दे रही हूँ। हाँ, फीलिंग है ना, अपना फीलिंग अपनी। हाँ, और उस टाइम कितना 10,000 रुपए उसका रेंट था, मुझे अभी भी याद है। हाँ, पर हरा भरा था, व्यू बहुत अच्छा था। सो दैट वाज माय फर्स्ट अपार्टमेंट। और उसके बाद आई गॉट मर्डर एंड देन आई बॉट माय हाउस इन वर्सोवा बिकॉज़ आई फेल इन लव विद दिस। और आप तो जिस तरीके से मेरे को एंट्री पे बताई, तो आप तो ऐसा रियल एस्टेट इन्वेस्टर टाइप लग रहे हो, मतलब यू रियली नो योर शिट, ऐसा टाइप है। I have learned. I've lost money. Okay. I've made bad investment decisions. I've lost crores invested with the wrong people. But then Really? yes. But because कोई guide करने वाला ही नहीं है मुझे, कौन किसने मुझे बताया ही नहीं. So, but I've learned the hard way. So now I know exactly where to invest, and at least I try to do my best. But it's been such a fun ride. So, Yeah. Come on, being cast with Jackie Chan, getting the international That was super cool. I'm going to come to that. Going to all the film festivals, being in LA, hobnobbing with who's who of the world, Yeah. meeting President Obama not once but twice. I mean, I'm a girl from Haryana with no connections, nothing. I've done it all on my own, and I'm super proud of that. That's true. मतलब तब तक जैकी चैन के साथ पिक्चर करना, इंटरनेशनल फिल्म्स इतना किसी ने चर्चा में क्या बात ही नहीं हुई थी, ये तो मतलब हमको पता ही नहीं था ऐसा सब भी हो सकता है। Right. तो वो कैसा एक्सपीरियंस था एंड वो कैसे हुआ? ऑडिशन से। हाँ, वो भी ऑडिशन से हुआ। Jackie, and I'm very proud to say he auditioned every actress in Bollywood. So all these actresses छुई हुई बन के जो कहती हैं हम तो कभी ऑडिशन नहीं करती, वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि मैंने उन सबके ऑडिशन देखे हैं। जैकी ने मुझे टेप दिखाई है सबकी। नाइस, ये ऐसा ही है। ऑडिशन से हुआ। He loved my attitude. He loved the way I did the scene they gave me, and they loved the fitness because I do a lot of yoga. I have a flexible body. I can देखा मैंने आपके Instagram पे। तो I can do action. तो उन्हें ये सब चीजों का मिश्रण जो था उन्हें बहुत पसंद आया, and they Very cast good. me. How is he? जैकी चैन के साथ? Great guy. मस्त एकदम. Very helpful, wonderful. He's like a big brother to me. Yeah? Yeah. You stayed in touch with Jackie Chan Oh, after? absolutely. He's the one who opened all the doors for me in Hollywood. Really? Yeah. He's really supported me. मस्त रहेगा ना, तो मतलब आप फिर वो क्या बिना हार्नेस एक्शन कर देते हैं क्या? He's grown up doing action. So जब उनकी फिल्म में myths मुझे मिली तो मुझे लगा क्या है? Again, this naivete. I just want to tell you. मैं अपने सब एक्शन खुद करूंगी। जैकी को इम्प्रेस करना था, जैकी चैन था। मुझे कोई स्टंट डबल नहीं चाहिए। And the director said, Jackie Chan said, "Are you sure?" I said, "I'm sure."
so करेगी ना? fit क्या है? The worst decision of my life. जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करूंगी मैं ये worst decision. क्या है वो तो बैक फ्लिप कराते हैं, कहते बैक फ्लिप करके किक करो, ये करो. They're like their bodies are like rubber bands. Yeah. Kung Fu is like that. Yeah. मुझसे ये सब so tough. इतना रोई मैं. I was like कि कहाँ फंस गई मैं इम्प्रेस करने के चक्कर में. बहुत रोई. मतलब कैसा होटल आके देखने का क्या किधर किधर अरे to move around and jump around in wires and cables and do action for 12 hours a day. See, 2 घंटा योगा करो is different than doing non-stop action for 12 hours a day. Yeah. So बहुत tough था मेरे लिए. और बोरिंग भी हो जाता है ना वर्किंग द सेम मसल्स, क्योंकि आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो. कभी दोबारा मैं ये नहीं बोलूंगी कि I will do all my own stunts. हाँ. Leave it to the professionals. Absolutely. तो ये जो LA का भी आपका ब्यूटीफुल रील्स में जो घर दिखता रहता है बार बार, जी. ये इसकी कहानी क्या है? क्योंकि LA में आई नो, मेरे को फिल्म स्कूल में डिसाइड करना था कि न्यूयॉर्क है LA, और LA में बोला गाड़ी नहीं है तो मत जाना. हाँ, तो ये बताओ ना पूरा विवरण कि ये जो पूरी LA में आपकी एक पूरी जिंदगी है. See, it's one small part of my life. ठीक है. क्योंकि इंडिया में आई फेल्ट कि मुझ पे इतनी ज़्यादा जजमेंट्स हो गई थी ना सिड. आई जस्ट वांटेड अ ब्रेक फ्रॉम इट ऑल. जब भी प्रेस देखो, ग्लैमर, किसिंग सीन्स, they couldn't come up with anything original. It was, and there were so many, they were taking out effigy, burning my effigies. There was somebody tried to shoot me and saying she's spoiling Indian culture. क्या बात कर रहे हो? And I was just feeling so attacked and. मतलब आप तो एक्टर हो ना यार, वो कहानी बाज या वो प्रोड्यूसर या उन पे क्वेश्चन नहीं उठ रहे कि जिन्होंने वो बनाया, वो प्रोडक्ट सेटअप किया. You are portraying a character. I think मैं एक easy target थी because I didn't have any support also in Bollywood. See, nobody would mess like that with the superstar's daughter or son, right? So I think it was भाई भट्ट साहब ने मुझे एक बार ही कहा था कि तुम गिरती पड़ती रोती रहती हो तो बॉलीवुड के कुछ लोगों को बहुत मजा आता है उसमें. That is what I really experienced. Anyways, to cut a long story short, I also thought अच्छा अभी अच्छा पैसा बना लिया है, बॉलीवुड में नाम कमा लिया है, let's experience a different culture. Why not? सही बात है. अभी थोड़ी कुएं के मेंढक यहीं बैठे रहेंगे. हाँ, मस्त है ना? So I packed my bags and off I went to LA. And Jackie said, "Don't you worry, you just land there and you'll get the red carpet treatment." Sure enough, he kept his promise. I got a red carpet treatment. Like you got an agent and a manager and everything. Everything. He organized everything. So you have that like set in LA now. Yes, absolutely. So nice. And I've met some fantastic people in LA. I've made great friendships, great relationships. So I like to spend some time of my life there. तो जो judgment और ये सब है, and because you've been so good with auditions, because यहाँ कई सारा कनेक्शन के थ्रू ही काम होता है. तो मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं था. हाँ. किसी ने मेरे लिए कभी फोन उठा के ये नहीं बोला मल्लिका को रोल दो. आज तक 20 साल में ऐसा नहीं हुआ. So I have gotten all the work that I've gotten through my auditions, through my talent. मैं माइम करके बोल रहा हूँ कॉल कास्टिंग पीपल. कोई तो करो मेरे लिए कॉल. कोई नहीं करता. हाँ यार, ये तो मतलब तो ऐसा है लेजिटिमेटली कि छत्रछाया नहीं हो, किसी की नाम नहीं हो अटैच. आई एम श्योर अभी थोड़ा चेंज हुआ OTT की वजह से, बट अगर देयर इज नॉट अ हेल्पिंग हैंड और अ नेम अटैच्ड टू यू, इट इज अ टफ बैटल. ये तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है. अगर किसी और का एक्सपीरियंस अलग रहा है तो व्हाई शुड आई कमेंट ऑन एनीबॉडी एल्सेस एक्सपीरियंस. या बट मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर आप बॉलीवुड में किसी कैंप के साथ ना जुड़े हो, अगर आपका कोई फेमस बॉयफ्रेंड बॉलीवुड में ना हो या गॉडफादर ना हो, तो चांस बहुत कम हो जाते हैं आपके. और मैं इस पे, और मुझे एक्चुअली इट इज व्हाट इट इज, यू नो. आई डोंट लाइक टू फोकस ऑन नेगेटिविटी एंड टू फाइट इट. बढ़िया, ठीक है ना. वी फोकस ऑन सॉल्यूशंस. मस्त है. any of these stories from here, like अभी तो घमासान बाहर बारिश हो रही है. हाँ. लोगों को अगर दिख सकता है ये तो फील ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे आ रही है बारिश. राइट. एनीहाउ, मुंबई की बारिश की कहानियां बताओ ना कोई. मुंबई की बारिश की कहानियां आई रिमेम्बर इनिशियल जो मानसून थे, पहले तो शॉक लगा क्योंकि हरियाणा में, दिल्ली में ऐसे मानसून इतना स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है. और ये तो कंटिन्यू हो गया, चलता ही रहा. हाँ, करेक्ट. देन आई सेड लेट गो, वी हैव टू एम्ब्रेस द स्पिरिट ऑफ द मानसून. भीगे नहीं भीगे छोड़ो, देखी जाएगी. या एंड इट्स सो रोमांटिक. इट इज ना, सो रोमांटिक. मूड अच्छा हो जाता है. हाँ, मतलब आई कांट बिलीव, बिकॉज मेरे लिए one of the first kisses I would have seen on screen was you. Then it was this actress embracing being like, you know, having this full water and like beach and coming out of it. It's just so like sensual. For me, all of that is you, and then I'm sitting in the same setting with you. It's just so awkward for me.
Like For me it was work, my God. एक हफ्ता से carbs नहीं खाओ, rice नहीं खाओ. You're coming out of the water. You have to Yeah. look sensuous and glamorous. अरे बाप रे. the greatest power. बरसात इतनी ज्यादा. Wow. क्रेजी हो गया भाई, क्रेजी हो गया. इतनी बारिश हमारे शो पे कभी नहीं हुई है. आज आपके साथ ये हमने एक्सपीरियंस किया है. तो अगर आवाज में अगर आपको बहुत ज्यादा अगर बारिश सुनाई देते हो फोक्स, प्लीज याद रखिएगा. ये देखो, आप देख सकते हो कितनी यहाँ पे बड़ी बारिश. कहीं लेफ्ट में शिव सागर एक है ना, छोटा आगे सा है ना. रेस्टोरेंट था. वहाँ पे मैं बहुत लंच थाली, वेजिटेरियन थाली आई यूज्ड टू हैव. हाँ. Are you a big foodie? Not so much. नहीं? I'm a vegan. हाँ. I was always a vegetarian, but last 10-15 years vegan. ओके, बट इज दैट क्योंकि आप हेल्थ वाइज कॉन्शियस हो, आप बहुत योगा करती हो इस वजह से, या जनरली? ये है ना शिव सागर? ये तो रहा Right here. हाँ, मस्त है. Yes, I used to have my vegetarian thalis here a lot. Because I don't know, I think when I do so much of intense yoga, and I'm not talking about fashion yoga, किसी योगा स्टूडियो में जाके नहीं, घर पे. टाइट कपड़े पहन के योगा पोजेस दो. पहली बात है, Pose अगर करो. आप टाइट कपड़े योगा में पहनेंगे which is detrimental to you, because वो बॉडी की एनर्जी उससे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. You have to let the energy flow. So Yeah. I like to do most of my yoga postures and practice in loose clothing, cotton loose clothing. जब आप इतना इंटेंस योगा करते हैं, I do Iyengar yoga. ठीक है. तो जो बॉडी की जो इतनी you don't need any stimulus because you're already so food is a stimulant, right? So you don't need that much because then you're already in a euphoric state, you're already so happy and high on life, and Yeah. yoga makes you that. You don't need desserts or sugar or spicy food. That's All true. that is not required. तो हमने शॉर्ट फिल्म बनाई थी हाँ. जिसमें से प्रोटैगनिस्ट बाहर निकल के आ जाता है, हाँ. और फिर मैंने आपकी आरके Very funny. आपने बनाई शॉर्ट फिल्म कितने टाइम पहले? ये हमने बना ली थी 2013 में. मुझे लिंक भेजना उसका. I want to हाँ, see it. हाँ. How, what a coincidence. या नो, हाँ. देयर इज एन एक्चुअल फिल्म जहाँ पर ये होता है. थिएटर में ऑडियंस बैठी होती है और वहां से बंदा निकल के आ जाता है. तो देयर इज, आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि आरके हैज पेड होमाज to that film. Maybe somewhere there are references in it. RK is an original. Okay. And Rajat Kapoor is an absolute genius. Yeah. And finally I'm getting a chance to work with people हाँ. whose work I respect, I admire, and also who's an absolute thorough gentleman. तो मतलब मुझे ये समझाओ कि आप एक 60s की महिला हैं. जी. तो ऐसे वो स्लो मोशन वाले जो आपने किए हैं ट्रेलर में, वो थोड़ा करके दिखाओ ना. ऐसे वाला क्या कर रही थी ये जो ऐसे ऐसे कर रही हो आप? फुल 60s एंड पूरे 70s. 60s की अभिनेत्री का किरदार निभा रही हो ना. हाँ. तो उसके सारे जो 60s की अभिनेत्रियों को जब स्टडी किया रजत हाँ. कपूर के साथ बैठकर, उनकी जो अदाएं थी, उनके जो नखरे थे, And there's a lot of facial expression. lot of restraint was required because I have so much energy when I talk. I use my hands, I use my head. But when I played Gulabo, no, you have to be so poised and perfect looking and only in the eyes. It is such a dream role. Yeah. Such a dream role. बट उसमें फिर देखो, कई लोग ने ना ट्रेलर के मैंने कमेंट्स पढ़े, कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है. Are you surprised? I am loving it because I really like it and I understood. हाँ. तो but See, Rajat Kapoor makes very intellectual films. ऐसा नहीं है कि दिमाग घर छोड़कर आओ और फिल्म enjoy करो. हाँ. You have to you use your brain. It sets you thinking. Yeah. It has a philosophy behind it. I'm sure अनोखी आंखों देखी is one of my favorite films. My also. Superb आंखों देखी movie. is a super film, but उसमें भी philosophy थी एक. Especially the ending, you know. अरे, That's superb है. it makes you think, and that's the kind of cinema he makes. कैसे I था? mean, to get a film like this in Bollywood, it's made me more hungry. It's empowered me as an Yeah. actress that I want to do more roles like that. I want more films like RK to be made in Bollywood. हाँ. मेरे पास जब सोनाली बेंद्रे के साथ हम कर रहे थे बॉम्बे जर्नी, तभी पब्लिक उन्होंने हमें बताया कि स्क्रिप्ट ऐसे सुनाई जाती थी हमें. मैम, एंट्री है, फिर गाना है, फिर थोड़ा ऐसा है, फिर थोड़ा रोना है, फिर गाना है, फिर खत्म आपका काम. ऐसा आपके साथ हुआ है क्या, ऐसा नरेशन? वेलकम के टाइम. हाँ क्या? हाँ, ऐसा ही था. नहीं, इससे तो बेटर था. अनीस बज़मी जी आए थे हाँ. नरेशन देने. एंड वेलकम के टाइम तो वो सारी स्क्रिप्ट तो होती नहीं थी ना अनीस जी पूरी फिल्म पर उन्होंने मुझे डिटेल में नरेशन दी थी. हाँ. और मुझे याद है नरेशन के वक्त में बहुत हंसी थी. हाँ क्या? हाँ, इट वो वाज वेरी hilarious तो है ही, देखो फिल्म. बहुत फनी है वो. जैसे वो मुझे करके सीन्स बता रहे थे एंड ऑल, ही इज वेरी फनी. So good. तो
ये तो आपको डायलॉग करना ही पड़ेगा, मतलब हम लोग ऐसे 2 बजे जब बहुत when you're drunk and now you want to be laughing ना, एक हमारा मिलेनियल कल्चर है शायद, हाँ. जहाँ हम लोग कॉमेडी चीज लगा के हंसते हैं। तो मैंने तो लिखा है कि सुबह से ना बिका है एक आलू, ना बिका है आधा कांदा। फनी, सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा। हाँ सेम। So Oh cool. God, Welcome was a lot of fun. उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत कॉमेडी फिल्म्स आई आपके पास? हाँ, उसके बाद मैंने अगली पगली की, प्यार के साइड इफेक्ट्स। I love प्यार के साइड I इफेक्ट्स। also, it was so nice. और ऐसा आपका मुंबई की बारिश का ऐसा चाय पकौड़े टाइप का सीन नहीं रहता क्या? अब नहीं रहता। पहले था। पहले वड़ा पाव मुझे बहुत पसंद था, बारिश में वड़ा पाव खाना। अभी एक वड़ा पाव में 600 कैलोरीज जाती वाट ले जाती है। तो इसलिए मैं अब नहीं खाती वड़ा पाव बारिश में। पर माहौल देखो ना, इस माहौल में समोसे, हाँ। वड़ा पाव, सो नाइस। मैं एक स्टैंड अप कॉमिक है वहीं के यूएस के, उनका वो देख रहा था। इंडिया या मतलब समोसा $1 बिलियन, इट्स एन एम्पायर। समोसे का समोसा मतलब इन द इट इज वर्ल्ड यूनिक। इट्स सो एक्सपेंसिव इन एलए एंड न्यूयॉर्क यार। $1.5-2 देने का समोसे के लिए। मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली, वहाँ पे एलए में सेंटा मोनिका में एक रेस्टोरेंट है जहाँ वो लोग में डोसा बहुत अच्छा बनाते हैं। इतना बड़ा डोसा, हाँ। मसाला डोसा बनाते हैं। हाँ। और गोलगप्पे बड़ी फैशनेबल तरीके से सजा के, छोटे छोटे ग्लास, उसके ऊपर गोल गोल ऐसे गोलगप्पे रखे। वाह, वाह, वाह। तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, लोग कहते हैं क्या है ये, मतलब पूरा चेंज कर दिया गोलगप्पा का। गैस्ट्रोनॉमिकल हाई एंड बना दिया उसको। और उसकी प्राइस कितनी? $20। व्हाट? 15 या $20। वोडका भी डालना है क्या पानी के अंदर? वोडका नहीं डाल रहा, गोलगप्पा ही था। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, इंस्टाग्राम पे है मेरे। तो वो $15 का वो था, और मेरे ख्याल से $12 का कुछ मसाला डोसा था। इधर 15 रुपए में प्लेट खा जाओ आप पूरी। लेकिन देसी घी में बनाया था उन्होंने, और इतनी उस पे मेहनत की थी उसको सजाने में, गैस्ट्रोनॉमिकल बनाने में। इंस्टाग्राम फ्रेंडली बनाते हैं इंस्टाग्राम फ्रेंडली, सो इट वाज वर्थ इट। आई सेड दे दो। हाँ, पर मतलब मुझे इतनी इतना दूर भी तो प्यार आप- दिखाते हैं ना। हाँ क्या? इतना प्यार दिखाते हैं, कभी मुझे चार्ज नहीं करते। हाँ। एंड स्पेशली जब मैं लंदन या न्यूयॉर्क जाती हूँ और कोई टैक्सी वाला अगर इंडियन हो, ही नेवर चार्जेस मी। मतलब वो तो देसीज भी है ना फिर कई सारे। हाँ, इसीलिए तो जो वही आप इंडियन हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे थे, जो प्यार इंडियन फैंस से मिलता है, हाँ। वो कहीं भी किसी को नहीं मिल सकता। सही बात। दैट इज वेरी स्पेशल। भी मुंबई कितना आते जाते रहते हो आप? मैं मुंबई में ही रहती हूँ ज्यादा। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ऐसा क्या? ऐसा आई सही स्पेंड है। अ लॉट ऑफ टाइम। अभी मैंने एक आर के के बाद एक सीरीज है बाउंसर नगर, अरे वाह, जो गुरमीत सिंह के निर्देशक में बनी है, क्या आप बात कर रहे हो? जिन्होंने मिर्जापुर direct बनाई किया है। है। जी हाँ। वो अभी उसकी शूटिंग खत्म हुई है, वो भी अभी रिलीज होगी। सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन बॉम्बे, बट अगेन बिकॉज आई डोंट गो टू दीज फिल्मी पार्टीज, मुझे पसंद ही नहीं है। सो पीपल डोंट सी अ लॉट ऑफ मी इन बॉम्बे। Yeah, दैट्स व्हाई आई थिंक द परसेप्शन कि मैं ज्यादा बॉम्बे में नहीं रहती, पर हाँ। बॉम्बे मेरा घर है। हाँ। इट्स होम फॉर मी। सही बात है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको सेट पे लोग पूछते रहेंगे टेक्नीशियन वगैरह कि मैम कभी आए ऐसा? बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, बट नाउ आई एम सो यूज्ड टू इट। हाँ। आई ऑलवेज टेल देम व्हाट आई टेल यू, दैट आई लिव हियर। हाँ। हाँ। गाड़ी बाइक की शौकीन हो क्या? हाँ, गाड़ी और बाइक्स की? मुझे इतना शौक नहीं है गाड़ी नहीं है और क्या? बाइक का। हाँ, गाड़ी का शौक लेके क्या करोगे? चला तो सकते नहीं बम्बई में। हाँ, इतना मतलब ट्रैफिक है। टुकुर फिर थोड़ा बहुत। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की स्पीड पे कार चलती है। अब आप दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया में, Absolutely, बट फिर यहाँ से हम लोग को अच्छा फील करने के लिए हम बैंगलोर के ट्रैफिक को और गाली दे देते हैं। बैंगलोर का और वाहियात है, उधर आप जाके दिखाओ 2 किलोमीटर। But you know, I am so thankful, Sid. It's a dream life. I'm living the dream, really. Yeah, because for me it was always so important to be independent economically and live life on my own terms and make decisions on my own, whether they are right or they are wrong. They are my decisions, and I'm living life the way I want to live my life. Nobody's telling me how to live my life or dictating anything to me. That in itself for a woman or a man is such a gift. Yeah. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया ना कई सारा। Right. ये सारा कहाँ से ला रही हो वैसे इतना फिलोसॉफिकल ज्ञान? आप मेडिटेशन वगैरह कर? ज्ञान नहीं है ये, this is the real You've become this. experience. I've become this. This is coming from the experiences I've led. Like बचपन में कितनी restrictions थी, and maybe I think वो माहौल ऐसा था, तो my family was correct in imposing those restrictions कि अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं रहना, it's not safe for girls. वो टेंशन लेते थे। हाँ, especially in the north of India. And so I've grown up with those, I've experienced all those things. हाँ, सही बात है।
ये जनरेशनल भी आपके साथ ऐसा होता है क्या? Are you learning new things with like Gen Z and stuff? Of course I am. अभी तो सबका मुझे लगता है the brains are in Instagram. Yeah. Everybody's brains. And I don't like social media. Oh gosh, I hate social media. बट आपका गेम ठीक ठाक है, आप कुछ को डालती रहते हो I बीच don't. में। It's an effort for me. It is an Yeah. effort for me. मेरी मैनेजर मेरे से कितना झगड़ा करती है. You have to put this. You have to put this. It is an effort, and I don't enjoy social media. I don't like. मुझे social media से पैसे नहीं बनाने. मेरे पास बहुत पैसे ऐसे ही आते हैं. I'm not interested in Instagram, but Yeah. now I see that it's everybody is on Instagram. जरूरी है। हाँ. I don't think इतना जरूरी है because I think social interactions बहुत कम हो रही हैं. Personal interactions, वो ज्यादा one-on-one जरूरी है। interactions. आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, everybody is on their phones, on Instagrams. Why are you Yeah. going to a restaurant then? सही बात है। मतलब आप, मैं याद करता था और मैं अभी परसों ही किसी को बोल रहा था कि आप रेस्टोरेंट जाके पहले समटाइम्स आप सिर्फ उसको गर्मा गर्म सूंघते थे और बोलते थे यार ये मैं खाने वाला I never take my phone with me. Yeah? हाँ. मैं शाम को घर में जब पहुंचती हूँ वापस, I check my phone. I have liberated myself from this phone. It's a monster, I think. लाइक The phone is a monster. कितना टाइम आप फोन के बिना रही हो? इन द सेंस दैट ये नहीं कि मैंने एकदम ही फोन त्याग दिया, पर ऐसा नहीं, पर कि मैं अभी चल रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, तो मेरे पास फोन नहीं होगा तो चलेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे है ये असिस्टेंट तो। के पास फोन है एंड आई प्रेफर इट दैट वे. अरे ये छोड़ो, रजत कपूर तो फोन ही नहीं रखते. हाँ वो अपना है कि ईमेल उनका छोटा वाला कुछ है। नहीं है, कुछ नहीं है. ईमेल पे यू कम्युनिकेट विद हिम ऑन ईमेल. वाओ। Because I think phones, they suck all our energy, they suck our consciousness, they suck everything out of us. सारा ध्यान फोन पे ही रहता है फिर. बट ये आप जो गानों की बात बता रही थी कि गाने भी आपको कई सारे मिले, ये जलेबी भाई वगैरह तो फट गया था एकदम लाइक। हाँ, बहुत मजा आया जलेबी भाई. हाँ ना, हाँ. दैट इज क्लिस्ट स्टेप अगर आप करने जाओ, क्योंकि हाँ. इतनी शादियों में फिर हमने किया भी, क्योंकि ऑफ कोर्स जलेबी भाई ऐसे का, या ऑफ कोर्स इजी fun. नहीं है। तो मतलब उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा आपको म्यूजिक वीडियोस या म्यूजिक के लिए कॉल, और गानों के लिए तो कितने कॉल्स आते हैं, अभी भी आते हैं, बट हाँ. इट हैज टू बी रियली स्पेशल. लाइक एक गुरमीत के साथ अभी एक गाना किया है सीरीज में. अरे वाह। हाँ, दैट्स अ स्पेशल सॉन्ग, दैट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग. मतलब उसमें कहानी भी आगे बढ़ मैं रही है। छोरी एटम बॉम्ब. हाँ। हाँ, तो वो गाना करके भी मजा आया. अभी सिर्फ पैसे के लिए गाना करना, दैट आई डोंट वांट टू डू. इट हैज टू ऑफर समथिंग मच मोर नाउ. Yeah. अभी जैकी के साथ बात चल रही है एक गाना करने की, दैट विल बी फन. जैकी दादा या जैकी बंगलानी? चैन. जैकी चैन। वो इधर मैं मलिका शेरावत के साथ बैठा हूँ तो ना, हम लोग जैकी मींस लाइक बंगलानी जी या अपने जैकी श्रॉफ, वी टॉकिंग अबाउट जैकी चैन. बड़ा सोचो सोचना शुरू करो से. उनके साथ बात चल रही है गाना करने की फॉर हिज अपकमिंग फिल्म. अरे वाह, सो ही वांट्स टू गेट अ बॉलीवुड नंबर, certain elements from Bollywood in his movie, in his upcoming movie. अभी ऐसा बाहर गांव में रह के इतना ज्यादा बॉलीवुड जो जलेबी also is becoming such a big thing It's over such there. a rage it's become, such a Yeah. rage. मैं सड़क पे चलती हूँ, बोलते hey jalebi baby. Yeah. I'll share some videos with you. Really? You are jalebi baby. Oh my नहीं, वो god. जी. Yeah, I'm like baby jalebi. मुझे तो मालूम ही नहीं कहाँ से आया ये. फिर मेरी मैनेजर ने मुझे बताया बेवकूफ ये गाना इतना हिट हो गया. हाँ. आपको नहीं पता था ये? मुझे नहीं मालूम था ये. क्या बात और कर रहे उनका हो? फोन आया था हमारे पास कि हाँ. ये गाना हम कर रहे कर हैं, लें. आप प्लीज ये गाना हमारे साथ करो. मुझे लगा कौन फालतू है ऐसे, डोंट कॉल मी एंड डिस्टर्ब मी, गेट लॉस्ट. Oh, और shit. फोन ऐसे काट दिया. You said no to Tesher. मुझे पता ही नहीं कौन था वो. मुझे कहाँ से पता चलेगा? अभी- इतने क्रैंक कॉल्स आते हैं, मुझे लगा ये कौन मेरे साथ अभी, कौन है क्रैंक कॉल? Somebody is doing a prank on me, playing a prank. What is Yeah. this? हाँ. But still, I mean, everybody thinks jalebi baby, I'm jalebi baby. ऐसे बाई से बेबी कब हो गया ये? जलेबी बाई तो था, बेबी हो गया. वाह यार, ये तो मतलब गजब है. कैसा लगा आपको इंटरव्यू? बहुत अच्छा. मजा So आया? cool, so nice and very real. Yeah. So very real. यही है ना, मतलब हम लोग ये ह्यूमंस आफ्टर ऑल ना. Right. क्या ऐसा पूरा एक हवा सा बना रखा है टू स्टे देयर, लाइक यू नो, टू सीम और लाइक अभी इन द शिट्स. another ridiculous thing is this airport look. Yeah. I was shocked. ये airport look क्या होता है? स्टाइलिश पैसे कैसे मांगेंगे ना. मतलब मेरी मैनेजर मुझे अंकिता कहती है नहीं मलिका एयरपोर्ट लुक तो करना. I said are you crazy? I'm not doing any airport look. या अभी आपको perhaps and celebrities and managers and everybody has a cohesive symbiotic relationship. जहाँ जा रहे हो पहले फोन करके बता दो कि मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ इधर. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है बिल्कुल. हाँ सही है ना, ऐसी होना चाहिए.
बट ये भी एक तरीके से सोशल मीडिया का वो है ना कि मतलब सोशल मीडिया पे इमीडिएटली लोगों को देखना है, तो फिर फोटो डाल के देखने जरूरी है, फिर वो लोग सेम एयरपोर्ट लुक पहन के जाते हैं पब्लिक, सेम exact. Oh, what is this airport look? Are you're traveling? The whole idea is to be comfortable, not to wear a straight. Anji, Anji. Not to wear some high fashion dress Yeah. at the airport or a sexy dress. The whole idea is plane में बैठना. You need to be comfortable. That's true. That's how I look at it. हाँ, मैं मतलब टी शर्ट और ट्रैक पैंट में जाता हूँ, मेरे को मैं टेंशन भी रहता है। ट्रैक पैंट ट्रैक सूट में जाती हूँ और सलवार कमीज, which is easy, simple. तो I have to really play this song because What is this? it is incomplete without doing BK Hot Tere. My God, stop this BK Hood obsession now. यार, how can you? Kunal Ganjawala, it is like You're a grown-up prime boy best. now. Yeah, but like, isn't romance supposed to be done everywhere, like in life, like whenever and always? Like, it's just, I'm trying to BK be. Hood is more of a fantasy, I feel. Really? Isn't it? I have to really watch the film वो again now. छत पे टंकी पे making out on the terrace, Yeah, on that's पानी totally की fantasy. टंकी मतलब and all ये किधर से होता है, किधर that. होएगा ये सब? But That's a romantic fantasy. it gave us goals. This is the male part though. Where is Yeah, the female part? there is no female part. There is no female part. This song did not have a female part in it. No. We'll do the oh. Yeah. Thank you so much for being on the Bombay journey. It was Thank lovely you, having you. Sid. It was so nice. It was great. Thank Yes. you.